Hello friends, Namaskar, welcome to Maths Guidance. So friends, this is going to be the fifth video in continuation with the series of videos of number system, that is chapter 1 of class 9th mathematics. So till now we have gone through the rational numbers, types of numbers, and we have gone through exploring rational numbers, and we have covered some problems on rational numbers lying between two rational numbers. So we have gone extensively through all these topics, and we have in the last video we have seen that terminating and repeating decimals. So now today is the turn of the problems on bar concept. So we are going to discuss. So today we will devote our video on problems of bar concept. Okay, so we are going to do so many questions, and this will clear our concept of bar, that is how to convert bar in fraction, how to convert fraction in bar, these sorts of questions. So I hope the video will be very interesting. So let's start the video. So friends, यहाँ पे हमने कुछ questions लिए हैं, selected questions लिए हैं हमने NCERT टेक्स्ट बुक और आर्य सवाल दोनों को मिला के लिए हमने. If we do this much questions, then I think it will be more than enough, because I have taken each and every type of question. So let us solve one by one, and we are going to do all of these questions in by two methods. I will tell you. Okay, so let's start the video. Solution number 1. So number 1 is 0.6 and bar. So we don't know what the fraction will come out. So let us suppose that let x is equal to this one, 0.6 bar. अभी हम इसे कैसे लिखेंगे? 0.6 बार को 0.6666 so on. ओके, अभी इसमें हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका होता है, मेथड 1, लेट अस टेल दिस मेथड 1, विच इज़ द नॉर्मल मेथड, एक्चुअल मेथड. सो वी आर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग मेथड 1. हमारे पास है x इज इक्वल टू 0.6666. ओके, सो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाई 10. हम देखते हैं कि बोथ साइड जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलता है? वी गेट, क्या मिलेगा हमें? इस साइड में तो 10x मिल जाएगा, 10x, और इस साइड में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.6666 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या होगा? एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा. So this will be 6.6666 डॉट डॉट डॉट. ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. दिस विल बी आवर इक्वेशन 1, एंड दिस व्हाट वी हैव अचीव्ड मीन्स 10x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. अभी हमारा टारगेट क्या है? ये किसी तरह से हट जाए. तो हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद ये और ये कॉमन हो जा रहा है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्टिंग, दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? 10x माइनस एक्स, दिस साइड मिल जाएगा हमें 10x माइनस एक्स, एंड दिस साइड हमें मिल जाएगा 6.66 डॉट 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 माइनस 0.6666 डॉट डॉट डॉट. दिस इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू, ये पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा, ओनली 6, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 6. अभी ये इजी हो गया है. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6/9, दैट इज इक्वल टू 2/3. This is our answer, because we were told to express in the form of p by q, in the form of fraction. So x equal to 3/2 is our answer. Okay,
Now we will see the shortcut method. Method 2, very easy method. We all should know this method 2, that is shortcut method. Okay, so what is the shortcut method? The problem was 0.6 whole bar. So directly we are going to write it. This is, the bar is on 6, so we will write 6 here, divided by, since the bar is on only one decimal, so we will keep it 9 here, so 6/9. अभी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, बट जब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन है तो फिर मैं समझाता हूँ, तो फिर क्लियर हो जाएगा. सो विल डायरेक्टली राइट इट 6/9, दैट इज इक्वल टू 2/3. ओके, अगर यहाँ दो डिजिट के ऊपर बार रहता तो हम वो दोनों को लिखते और नीचे में 9 लिखते. मीन्स एक बार जिसके ऊपर है उसके बदले में हम 9 लिखेंगे डिनोमिनेटर में. ओके, सो दिस वाज मेथड 2, शॉर्टकट मेथड, वेरी इजी मेथड. नाउ लेट अस सॉल्व नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 is clear, I think. 0.6 bar. Okay, so question number 2 was 0.4 and bar on 7. Okay, so method 1, that is our normal method. Let x is equal to 0.4 and bar on 7, that is equal to, हम इसको लिखेंगे 0.4777 like this. Okay, doing the same thing here also, multiplying both sides by 10. पहले हम 10 से ही करेंगे, अगर 10 से हमारा यूजफुल नहीं होगा तो हम 100 में जाएंगे. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? दिस साइड वी विल गेट 10x and this side this will shift to here, means 4.777. so let's write it here. This will be our 10x and that is equal to, okay, let me write it first here. 0.10 into 0.4 and 777 ... This implies 10x is equal to, एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा तो 4.7777. ओके, सो आई डोंट थिंक दिस विल सेटिस्फाई आवर desire, because here we have 0.4777 and here we have 4.777. so what we will do, let's multiply by 100. this will be our equation 1, that is x equal to 0.477. इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस साइड विल कम 100x and this side 47 point this, so we will write here. now, अच्छा इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. now multiplying both sides by 100, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 ऑफ इक्वेशन 1, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ. वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 100x इज इक्वल टू 47.7777. दिस. अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता दिखता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा, अभी हम इसे छोड़ देंगे, इसे यूज़ नहीं करेंगे. ओके, अभी हम इन दोनों में आ जाएंगे 10x एंड 100x में, कि यहाँ हमारा 0.7777 है, यहाँ भी सेम है. अभी हम माइनस करेंगे तो ये पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? दिस साइड हमें मिल जाएगा 100x माइनस 10x और दिस साइड मिल जाएगा 47.7777 ... माइनस 4.7777 ... दिस सिंप्लाइज दिस साइड वी विल गेट 90x एंड दैट इज इक्वल टू 47 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 43, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 43/90, यही हमारा आंसर होगा. ठीक है,
इजी टू अंडरस्टैंड मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि हमारा x इक्वल टू 0.4 एंड 7777 है। हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और यहाँ पे 4.7777 हो जाएगा, जो कि हमारा पर्पस को फुलफिल नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.7777। अभी दिस पोर्शन नीड्स टू बी सेम, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो जब तक यहाँ सेम नहीं होगा आफ्टर डेसिमल हम करते रहेंगे। अगर 100 में नहीं होता तो हम 1000 में डालते हैं। ओके, सो 100 में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता दिखता है। अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 100 माइनस 10x दिस साइड 90x एंड दिस साइड दिस माइनस दिस, दैट इज इक्वल टू 43, दैट इज x इक्वल टू 43/90। अभी हम देखेंगे मेथड 2 से। मेथड 2 दैट इज आवर शॉर्टकट मेथड। मेथड 2 शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भी हमारा काफ़ी यूजफुल है, तो उसे हम ज़रूर देखेंगे। ओके, सो आवर x इज इक्वल टू 0.4 एंड 7 बार ऑन 7। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे दिस इक्वल टू, पहले हम 47 लिख देंगे। 47 लिखने के बाद जिसमें बार नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं, तो उसको माइनस करेंगे, -43 डिवाइड बाई जिसके ऊपर बार है उसके बदले में 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखेंगे। तो दैट विल कम आउट 43/90। ओके, द फंडा इज लाइक दिस कि जिसके ऊपर में बार है उसके बदले 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले हम 0 लिखेंगे। सभी क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करेंगे। और ऊपर में पहले हम पूरा डिजिट लिख देंगे, उसके बाद अगर हमारा यहाँ पे 1 पॉइंट रहता तो हम 147 लिखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जिसमें बार नहीं है उसको हम माइनस करते। अगर 1.4 एंड 7 बार रहता तो हम 147 माइनस 14 करते और नीचे में 9 0 0 करते। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर। कोई बात नहीं, हम फिर से और प्रॉब्लम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, बट नॉर्मल मेथड इज लाइक दिस। अभी हम क्वेश्चन 3 लेते हैं। 0.001 के ऊपर बार। क्वेश्चन नंबर 3 इज 0.001 बार। ओके, सो लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। ये हमारा मेथड 1 है, M1। लेट्स सॉल्व द नॉर्मल मेथड दैट इज M1। क्वेश्चन एग्जाम में यही इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। दैट इज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एनी अदर पर्पस। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप इसे यूज कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड में, बट यूज दिस ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, अदरवाइज डू नॉट यूज। सो हम x इज इक्वल टू 0.001 बार। अभी हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 001 001 001, इट विल बी लाइक दिस। ओके, सो सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। पहले हम 10 से ही शुरू करेंगे, बोथ साइड्स बाई 10। वी गेट 10x इज इक्वल टू, एक 0 शिफ्ट करेगा, मतलब ये 0 पॉइंट ही रहेगा, बट पहले 01 आएगा, फिर 001 001। तो इससे हमारा पर्पस फुलफिल होता नहीं दिखता है। अच्छा, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100 ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। अभी हम इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस साइड वी गेट 100x। दिस साइड दो डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा, मतलब अभी भी 0 पॉइंट ही रहेगा, बट 1 आएगा, फिर 001 आएगा, 001 आएगा, लाइक दिस। ओके, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू फुलफिल आवर प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हमें 001 ही लाना है, तभी उसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1000, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1000।
ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इस साइड तो 1000x मिल जाएगा। अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हमें 1 पॉइंट हो जाएगा, 1.001001 लाइक दिस। अभी देखिए इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है, तो हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 4 वी गेट दिस साइड 1000x माइनस x इज इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। 999x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 999। ये हमारा आंसर, सॉरी दिस साइड 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, तो 999x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 999x, दिस विल बी आवर आंसर। अभी हम मेथड 2 देखते हैं, जो हमारा शॉर्टकट मेथड है। हमारे पास क्या था, 0.001 होल बार। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, सभी के ऊपर बार है तो हम पूरा ही लिख देंगे, कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। डिवाइड बाई सभी के ऊपर बार है, इसलिए हम 999 लिखेंगे, तीनों के ऊपर बार है ना, तो 999 आएगा। तो दिस विल बी आवर आंसर 1 बाई 999, सो इजी। ओके, तो 3 प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व टिल नाउ। नाउ वी विल गो टू प्रॉब्लम 4. ओके, so our fourth question is like this, 1.4 bar on 4. So normal method m1 we will do first by m1. Let x is equal to 1 point bar on 4, that is equal to 1.4444 like this. Okay, so multiplying by 10, this time I am not writing, multiplying by 10 both sides, so this side this will be 10x, that is equal to, this decimal will shift here, means 14.4444 like this. This will be equation 1, this will be equation 2. So you can see that this is fulfilling our desire, because after decimal 4444 and this after decimal also we have 4444. So subtracting equation 1 by equation 2, what we get, let's see what we get. We get 10x minus x, 10x minus x, that is equal to this minus this, 14.4444 dot 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 minus 1.4444 dot dot dot. So 9x is equal to, ये पोर्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, only 14 minus 1, that is equal to 13. This implies x is equal to 13 by 9. ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम मेथड 2 से देखते हैं। मेथड 2 से क्या था हमारे पास, 1.4 के ऊपर बार। मैंने क्या बोला था आपको, पहले हम पूरा लिखेंगे नंबर, उसके बाद माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, -1 करेंगे। अभी बार के ऊपर क्या है, 9 है, तो हम 9 ही लिखेंगे, क्योंकि हम पॉइंट के बाद का ही डिजिट को नीचे लिखते हैं, पॉइंट से पहले वाले को नहीं लिखते हैं। तो ये 13/9 हो गया। ओके, so method 2 is very simple. So let's move on to question number 5. Question number 5 में क्या था, 0.2 bar on 4 5. I think this was our question. 0.2 bar on 4 5. Okay, so let x is equal to this method 1, our normal method. X is equal to 0.245 bar on 4 5, that is equal to 0.2454545. It will be like this. So again multiplying by 10, 10x is equal to, this decimal will shift here, 2.454545 dot dot dot. Okay, this is equation 1, this is equation 2. So is this going to fulfill our problem? No, this is not going to fulfill, because यहाँ पे 0.2 एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है और यहाँ पे 4545 ही है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। अभी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड 100x और दिस साइड में ये हो जाएगा
I think 24.5 and again 45 dot dot dot. This will be equation 3. तो यहाँ पे हमें भी फुलफिल नहीं करेगा, सो हम इसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, हमें लगे नहीं कि हमारा डिज़ायर फुलफिल करता हो. जैसे 1000 से जब हम करेंगे तो द होल पर्सन विल शिफ्ट हियर. सो 245.454545 इट विल बी लाइक दिस. इक्वेशन 4. अभी आपको किसी दो इक्वेशन में ये सिमिलर दिखेगा. किसमें? इसमें दिखेगा और इसमें दिखेगा. आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 454545 है और यहाँ भी है. तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 4. वी गेट this side we have 1000x and this side we have 10x. That is equal to 245.4545 dot 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 minus 2.4545 dot dot dot. I think this is quite clear to you कि हमने क्यों इतना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है आपको. This is the way of understanding the question. Our approach should be clear and then and only then we can solve the question. Okay, so this side it will be 990x, that is equal to 245 minus 2, 243. This side it will be cancelled out. Okay, this means x is equal to 243 by 990. और इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये 3 से जाएगा. तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, so 330. 81 divided by 330. I think again it can be done. 3 2 just 6, 2 1 3 70. Okay, so 27 by 110. This will be answer. So now we check by M2 method 2. The question was 0.245 bar. तो उसको डायरेक्टली हम 245 माइनस 2 करेंगे. मैंने बताया था जिसके ऊपर नहीं उसको माइनस करना है. डिवाइड बाई 2 के ऊपर बार है तो 99 लिखेंगे, इसके ऊपर नहीं तो 0 लिख देंगे. तो 243 बाई 990 ये आ गया हमारा. सो दिस इज़ क्वाइट क्लियर. इसके बदले में ये लिख देंगे. सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या था? 0.324 के ऊपर बार. 0.324 के ऊपर बार. ओके, नो प्रॉब्लम. M1 से करते हैं, मेथड 1 से. लेट x इज इक्वल टू 0.324 बार. दैट इक्वल टू 0.324 लाइक दिस. मल्टीप्लाइंग बाई 10 वी गेट 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, 3.24 अगेन 324 लाइक दिस. दिस इज नॉट गोइंग टू फुलफिल आवर प्रॉब्लम. सो वी विल गो अप टू 100x. 100x में ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, मीन्स 32.4 324 लाइक दिस. दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू फुलफिल. So now we will go up to 1000x. So this decimal will shift here, 324.324. This is equation 1, this is equation 2, this is equation 3, this is equation 4. Okay, अभी हम 324 हमारा यहाँ पे है और यहाँ है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 by 4. सब्ट्रैक्टिंग equation 1 by equation 4. We get, what do we get? 1000x minus x, that is equal to 324.324 dot 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 minus 0.324 dot dot dot. This implies 999. X is equal to, this will cancel out.
So we are left only with 3 to 4. This implies x is equal to 3 to 4 divided by 999. आई थिंक ये और सिंप्लीफाई होगा क्योंकि 3 से तो जाएगा ही जाएगा, 9 से भी जाएगा। 9 3 जा 27, 5 54, 9 6 जा 54, दिस साइड 1 1 1 और हो सकता है, हाँ और हो सकता है। 3 12 जा एंड 3 3 जा 9 3 7, दैट इज इक्वल टू 12 by 37. दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी M2 भी देख ही लेते हैं। M2 में क्या है, क्वेश्चन क्या था हमारा, 0.324 के ऊपर बार। इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 324 तो लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि तीनों के ऊपर बार है, और चूँकि तीनों के ऊपर बार है तो इसलिए 999 लिखेंगे। तो ये तो हमारा आंसर ही हो गया, और सिंप्लीफाई करके इसे 12 by 37 कर देंगे। तो कितना ईजी है ये शॉर्टकट मेथड, आप देख ही सकते हैं। I think you will like this shortcut method. So let's move on to 7th question. 7th question is our last question, that is 0.1 and bar on 6.3. We have checked all the sorts of questions, all the forms of questions, but चलिए कोई बात नहीं, इसे भी कर लेते हैं। So let M1 से करते हैं। Let x is equal to 0.163 bar, that equal to 0.1636363 like this, that will be equation 1। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इक्वल टू डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा 1.636363, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू नॉट गोइंग टू फुलफिल, नो प्रॉब्लम। 100x करेंगे, 100x में 16.3 हो जाएगा, फिर 6363, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर 1000x करेंगे हम तो 163.636363 हो जाएगा। अभी ये पोर्शन यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 4, हमें क्या मिलेगा, 1000x माइनस 10x, that is equal to 163.6363 dot 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 minus 1.6363 dot. This side we will get 990x, this side 162, ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, वहाँ 163। So this implies x is equal to 162 divided by 990। इसे भी हम 3 से कर सकते हैं, like this। 9 से भी जाएगा, 9 6 जा 54, नहीं 9 से नहीं, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 2 24, 3 8 जा 24, 1 1 1। ओके, 2 से भी जाएगा। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म 9/55। अभी हम इसे अगर M2 से देखना चाहेंगे, M2 मेथड 2 से, तो क्या होगा, 0.1 एंड 63 के ऊपर बार। सबसे पहले हम 163 लिखेंगे और -1 लिखेंगे क्योंकि 1 के ऊपर नहीं है। डिवाइड बाई 2 के ऊपर है तो 99 लिखेंगे, 1 के ऊपर नहीं है तो 0 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 162/990, जो कि आपका यहाँ दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 9/55 आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपसे पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो गाइज, अभी थोड़ा ट्रू फॉल्स खेलते हैं। ट्रू फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिए हैं। दिस विल कवर ऑल योर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम RS Agarwal एंड NCERT टेक्स्ट बुक, एंड आई होप दिस इज सफिशिएंट। सो फर्स्ट क्या है हमारा, यहाँ में रीजन्स भी देने हैं, गिव रीजन्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो ये ट्रू है कि फॉल्स है। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर 0 से, तो ये ट्रू है, मतलब दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि नेचुरल जो हमारा स्टार्ट होगा ये 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और होल नंबर में हमारा 0 से होगा,
0 1 2 3, तो होल नंबर के अंदर ये रहेगा, इसलिए ट्रू है। तो रीजन इज दैट द होल नंबर विल कंटेंट ऑल दिस नंबर्स, सो दिस इज ट्रू। नाउ सेकेंड वन, लेट्स सी, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर में हमारा क्या आता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और नेचुरल नंबर में हमारा क्या आता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये हमारा फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि 0 तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ओके, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 is a whole number but it is not a natural number. Okay, let's see third one, every integer is a rational number। तो ये ट्रू ही होगा क्योंकि इंटीजर में मान लिया -5 -4 ऐसे ही होता है, -3 -2 -1, जो कि हमारा रेशनल नंबर भी होगा, तो ये ट्रू ही है ये। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि रेशनल नंबर में हमारा हम तो कुछ भी ले लेंगे, 3/2 5/7, माइनस में भी ले लेंगे -5/9, तो दे आर नॉट होल नंबर्स, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। फिफ्थ में आते हैं, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रेशनल नंबर। ये तो हमारे डेफिनेशन में ही था, ट्रू है ये। दिस वाज the characteristics of rational number, that every terminating decimal and every repeating decimal or recurring decimal is a rational number। तो ये true है, this is the definition of rational number। now let's move on to question 6, every repeating decimal, this is also same na, this will be true also, every terminating and every repeating decimal is a rational number। okay, 0 is a rational number। I have taught this in our first video that 0 is a rational number because it can be represented as 0 1, which is a rational number, so it is true, which is the form of p by q where q is not equal to 0, so it is a rational number। now this one, every integer is a whole number। अभी इंटीजर में क्या है, हमारा इंटीजर तो इस साइड में होगा, 0 के लेफ्ट साइड में होगा, और होल नंबर तो इधर से होगा, तो ये फॉल्स होगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्योंकि अगर हम इस साइड का कुछ ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं, तो इट विल नॉट बी ए होल नंबर। ओके, सो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। सो आई होप काफ़ी कुछ हमने आज की वीडियो में किया है। ओके, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, सो गाइज, आज के वीडियोज़ में वी हैव सीन लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस ऑन बार कॉन्सेप्ट। We have done almost 6 to 7 questions on bar problems, and we have seen both the methods, that is the normal method and the shortcut method. Shortcut method is in fact very short. We must know that one because it helps us in saving our time in such scenarios, such that in exam point of view, if this comes in an objective type of question, then you can use the shortcut method, no doubt, and it is quite clear also. So we have seen both the methods of solving the bar concept, then that is sufficient. We have covered almost all types of problems, and then we have covered the true and false section, almost 9 or 10 statements we have seen whether it is true or false, and with reasons. So this is a recap. This is a recap of whatever we have read, whatever we have gone through till now, till the 5th video. So this completes our one part of number systems, that is rational numbers. So now we are left with irrational numbers, which we will continue from the next video. So hopefully you like the video, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।